Welcome to the latest episode of The Speaking Citizen. I am Mehru Jafar. My guest today is Dr. Saif Mahmood, author, poetry and literature critic, and an advocate of the Supreme Court of India. However, Saif Mahmood is most popular for sharing his passion for Urdu poetry with people. It is always a delight to hear him recite Urdu poets like Majaz, Sahil Ludhianvi, Faiz, and countless others. One amongst the above-mentioned poets addresses even the rival with such amazing respect and a heartfelt call, saying to the rival, "Come to me, despite the fact that you are my rival. I still welcome you and I long for you because आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परेशान बना रखा था." Saif Mahmood will surely agree with me that the ideas and vocabulary of all these poets he loves so much are such a contrast today to vocabulary used in public life, like mafia, mutton, mul, Gujarat, Mangal Sutra, Makhi, Machhar, minority, and cringing as it may sound, let me also add the way the word Musalman is uttered by politicians today. My very first question to you, Saif Mahmood, is describe the language that has overtaken the airwaves today as politicians compete with each other to collect the maximum number of votes from the electorate. Do you think the electorate is happy to be addressed in this way? Well, thank you very much for having me here, Mehru. And but to answer your question, I think most of the electorate is actually happy with this kind of language. The problem today is that the level of political discourse, and not just political discourse, the level of discourse generally in the civil society has become so low. The bar has become so low that nothing really matters, and the institutions that ought to regulate these are also silent. I mean, I have absolutely no hesitation in saying that had there been a vigilant election commission of the Supreme Court, this would not have been happening. मैं एक आपको कथा सुना देता हूँ जी। सागर खयामी आपके लखनऊ के शायर थे और दिल्ली में बहुत दिनों रहे। उनका कथा एक बार दिल्ली में गोश्त मिलना बंद हो गया था, मटन, क्योंकि आजकल मटन की राजनीति भी बहुत हो रही है साहब, बीफ की राजनीति। तो मटन मिलना बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल इशू, द एबेटोयर वाज शट। तो वो दिल्ली में थे उस वक्त। तो उन्होंने, उनका कथा है कि 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन। क्या बात। 1 महीना हो गया है बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। अब खा के घुइयां क्या दिखलाएं शायरी का बांकपन, हो गए पालक का पत्ता नाजुकी से गुलबदन। नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। यही हुआ है आज, जो है सब्जियां हिंदू हो गई हैं, बकरा मुसलमान हो गया है। यही जो है हमारी जबानों के साथ हुआ है। हिंदी को आपने हिंदुओं की जबान बना दिया है। हम लोग जिस जबान में बात कर रहे हैं, इसको अगर ये आप दिखाएंगी जब, तो कहा जाएगा कि साहब वो दीज आर यू नो द खान, दिस इज द खान मार्केट गैंग टॉकिंग इन इंग्लिश और उर्दू। तो ये भी एक कह लीजिए कि गाली हो गई है आजकल। मुझे याद है कि अब कुछ दिनों पहले, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कि सुषमा स्वराज ने ये शेर पढ़ा था मनमोहन सिंह के लिए पार्लियामेंट में कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तेरी रहबरी का सवाल है हमें रहजनों से गिला नहीं। ये शाहब जाफरी का शेर है। और ओरिजिनली ये शेर डिबेट्स में आपको मिल जाएगा, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, कि मौलाना आजाद ने पंडित नेहरू के लिए पढ़ा था। अब और इसके जवाब में मनमोहन सिंह साहब ने इकबाल का शेर पढ़ा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख।
ये था पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर आपसी जो इख्तिलाफात भी होते थे, they were also I mean they were cultured enough not to cross a line, but that line has now far been crossed in terms of language, in terms of just the manner in which we address people and speak to each other. So vocabulary was also used, I think, always in the past, in particular, to bridge differences between citizens, between yes. fellow human beings. But now there seems to be a desperate search for a new dictionary that will divide people. Isn't that what is happening? I think that dictionary has already been created in most part, and people who want to use words out of that dictionary don't have to do much now. And I will blame not only the politicians but also the institutions for this. Recently, there was an order of the High Court of Delhi saying that Urdu and Persian, or difficult Urdu and Persian words, should not be used in FIRs. I mean, these words have been used since time immemorial, and इनफैक्ट अगर आप किसी पुलिस वाले को आज भी नॉर्थ इंडिया में ये ना मौका वारदात पे ले जाके ना समझाएं तो उसको समझ नहीं आता है कि क्या बात हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने, ऑल्दो द हाई कोर्ट हैज सेड कि हम इसलिए इसको हटवाना चाह रहे हैं बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड देम। वेल, पीपल डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, people don't understand most of what you write in your judgments. But this language politics that is being played, or politics that is being played by using language and vocabulary, for this I also hold our institutions responsible. जबान जो आप कह रही हैं कि पहले इस्तेमाल होती थी लोगों को मिलाने के लिए, अब लोगों को जुदा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका एग्जाम्पल्स तो आपको इसके कई ऐसे मिल जाएंगे उर्दू पोएट्री में, लिटरेचर में। जिगर का मशहूर शेर है, पता नहीं कितने पॉलिटिशियंस ने इस्तेमाल किया है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पहले इस तरह के जो है वो की जबान इस्तेमाल होती थी, and now of course it is all about mujra and So what do you think, as a country with a civilization that we take pride in, is thousands of years old, are we losing the art of conversing with each other? Is it a case of language saying today, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, or are you still hopeful that हम देखेंगे? Well, again, I don't want to lose hope, because like I've said in the afterword to one of my books, my book Beloved Delhi, in the afterword to that book I have said that my belief is that symbols of love cannot be destroyed, and I think Urdu language and literature and poetry, they are the greatest symbols of love in India. And also, therefore, I have hope, and I have great hope in the next generation, because when you see these crowds of 3.5 lakhs at Jashn-e-Rekhta every year, and most of them young people, and out of the young people, most of them whose first language is not Urdu, and they have come there only for the love of the culture, of the language, of the vocabulary, the syntax, I still have some hope in my heart. Everything is not lost yet. So what is this attraction of Urdu? What do you think is the role of poetic ideas and poetic vocabulary in any public or private? Yeah, I think the role of poetry is, and the charm of poetry is this, that it can say a lot in just 2 lines. जिसको कहते हैं समुंदर को कूसे में बंद कर देना, ये शायर का कमाल। वही बात आप एक बहुत लंबे से ऐसे में कह सकते हैं, वही बात आप किसी ने 2 लाइन्स में कह दी है। अब अगर आप आज जो हो रहा है इसके बारे में बात की जाए तो लेट मी जस्ट रिसाइट 2 couplets or 3 couplets of पीरज़ादा कासिम। बिल्कुल, कि ये जो हम लोग जो पूरी गुफ्तगू कर रहे हैं, that today the political discourse, parliamentary discourse has gone so low, people are trying to divide, politicians are trying to divide us, etc. ये देखिए आप इन्होंने क्या बात कही है पीरज़ादा कासिम ने, कि जख्म दबे तो फिर नया तीर चला दिया करो, जख्म दबे तो फिर नया तीर चला दिया करो, दोस्तों अपना लुत्फ़े खास याद दिला दिया करो, और एक इलाज दायमी है तो बराए तश्नगी, there's a permanent cure for
फॉर थर्स्ट, एक इलाज दायमी है तो बराए तिश्नगी, पहले ही घूंट में अगर जहर मिला दिया कर। क्या बात। और आखिरी शेर तो बहुत ही हस्बेहाल है कि शहर तलब करे अगर, ये हमारे पॉलिटिकल राजाज के लिए है कि शहर तलब करे अगर, तुमसे इलाज तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया कर। क्या बात। तो अब ये जो साहिब इख्तियार हैं, ये जबान का इस्तेमाल करके आग लगा रहे हैं, जबान का इस्तेमाल करके आग लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग जो दूसरी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको ये तहजीब और तमीज़ नहीं है इस तरह की शायराना जबान इस्तेमाल करने की, कि मेरा क्या? ख्याल है ये कि जी, मेरा ख्याल है कि दोनों बातें हैं। एक पहली बात तो तहजीब और तमीज नहीं है, ये बात भी सही है, लेकिन जिनमें तहजीब और तमीज है भी उनमें से कुछ लोगों में, या वो अगर चाहें तो मुनासिब जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जबान जो है उनके कम से कम सियासत में काम नहीं आने वाली। सियासत जो है वो इसी जबान से चलेगी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी फायदा होता है अगर मेरे ख्याल भाई, जब तक आप मुसलमान का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक आप मटन का जिक्र, बीफ का जिक्र नहीं करेंगे और मुजरे का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक उस लेवल पे आप नहीं गिरेंगे, तब तक आप कम्युनल पॉलिटिक्स तो चला नहीं सकते। और कोई पॉलिटिक्स आपके पास है नहीं चलाने को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आपको करनी नहीं है, करनी है तो बिल्कुल झूठ करनी है। जिस चीज पे आपको वोट मिल रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल हेट्रेड है, और कम्युनल हेट्रेड के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की जबान इस्तेमाल करने की जरूरत है, बस दैट्स ऑल। तो क्या बकौल बकौल जी गोपाल दास नीरज, जो उन्होंने तो तब ये कहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो अब मेरे ख्याल से जबान भी हमको दूसरी ऐसी चलानी पड़ेगी जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, क्योंकि अब तो जबान के जरिए आप इंसान को दरिंदा बना रहे हैं। तो ये भी एक अजीब और गरीब माजरा है कि मुसलमान जिसको कहते हैं गोश्त खा के हॉट ब्लडेड होता है, टेररिस्ट होता है, चार चार औरतों से शादी करता है, इतना तहजीब और तमीज के दायरे में इतना खामोश क्यों है आज? इतनी उसको गालियां पड़ रही हैं, इतनी। मेरे ख्याल से जी, मेरा ये ख्याल है, जाती ख्याल हो सकता है गलत हो, कि जो लोग खामोश हैं वो डरे हुए हैं, और आपने इतना ज्यादा इन लोगों ने उसको डरा दिया है, धमका दिया है कि मुसलमान, जो मेजोरिटी है मुसलमानों की, वो तो वैसे भी अपनी रोजी रोटी के लिए फिक्र कर रहे हैं, और फिर वो जिस आदमी को अपने जान और माल और माश की फिक्र हो, और वो उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाए कि वो इस तरह का एहतजाज भी करेगा, मेरे ख्याल से वो जरा सी अनफेयर बात भी है, क्योंकि और उसको आपने डरा दिया है अच्छी तरह से, तो वो सोचता है भैया जब 2 वक्त की रोटी चल जाए वो काफी है, हमसे क्या मतलब। तो अगर डरा दिया है कौम को तो फिर कामयाब हो गए। बहुत हद तक कामयाब हुए हैं ऐसे। आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखिए तो जितने मुसलमान मुल्क से बाहर पिछले 3 साल में गए हैं, उतने मेरे ख्याल से 13 साल में नहीं गए। अगर आप इमिग्रेशन की स्टैटिस्टिक्स देखें तो जितने लोग, मैं क्या बताऊं आपको कि ये निहायत ही शर्मिंदगी की बात है कि मैं ये मुझे सुनना पड़ा कि मैं एयरपोर्ट जा रहा था दिल्ली में, तो जो उबर वाला था उसने मेरा नाम देख के मुझसे पूछा कि सर आप क्या मुसलमान हैं? तो मुझे तो पहले में जरा बड़ा गुस्सा भी आया, मैंने कहा हाँ बताइए क्यों? कह लेंगे नहीं सर मैं भी मुसलमान हूँ, पर मैं अपना नाम राजू लिखता हूँ। मैं कहा अच्छा, तो बात होने लगी, कह लेंगे क्या काम करते हैं आप? मैंने बताया कि मैं वकील हूँ। कह लेंगे सर फैमिली? मैंने कहा नहीं मैं अकेला हूँ। कह लेंगे तो सर आपके लिए नहीं है ये मुल्क, आपके पास तो पैसे वैसे होंगे ठीक ठाक, आप बाहर निकल लीजिए। अब बताइए, जब टैक्सी वाला जो है एक आम आदमी कहता है हमारी किस्मत में तो नहीं है, आप बाहर निकल लीजिए, ये आपने जब उसको खौफ पैदा कर दिया है उसके दिमाग में और ज्यादातर मुसलमानों के दिमाग में, तो वो, और आई मीन अच्छे अच्छे, मैं आप किसी और की क्या बात करूं, मैं खुद 6 महीने से ज्यादा जो है लंदन में गुजारता हूं, मैं इस वक्त यही हूँ, और इसीलिए यहाँ हूँ क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल माहौल है वो ऐसा है कि वो चाहे डर ना हो हम जैसे लोगों को, लेकिन कम से कम फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो जाता है।
और जाहिर है इसमें ये कामयाब रहे हैं, बिल्कुल बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब तक मौज खून जो है ये सर से गुजर नहीं जाएगी पूरी एक बार में, तब तक ये इसके हालात में जो है हमारे मुल्क के, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो मौज खून को एक बार पूरा सर से गुजरना पड़ेगा उसके लिए। तो उम्मीद आप किस चीज से आती है उम्मीद? मुझे उम्मीद अभी भी इस चीज से आती है कि मुझे लगता है कि जो हमारा आम आदमी है, और खास तौर पे वो आम आदमी जो जो गांव में रह रहा है, और मैं जिसको एलीट कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम आदमी है वो, उससे मुझे अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। क्योंकि इनहेरेंटली इंट्रिंसिकली द इंडियन पीपल आई थिंक आर बाय एंड लार्ज डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर। और वजूहात हो सकती हैं उनको जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जब जब और जहां जहां भी इस तरह की कोशिश की गई है, उसका नतीजा उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कोशिश की है हमेशा बहुत खराब रहा है। अब उसमें वक्त कितना लगे ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा एट द एंड ऑफ द डे कि ये बिल्कुल कामयाब होंगे। कभी ना कभी तो एहतजाज होगा, कभी ना कभी तो वो रेवोल्यूशन आएगा, जिसके लिए मजरू ने ये कहा कि वो मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कारवां कभी ना कभी तो होगा। अच्छा, आपको लगता है ये सवाल आपने इसका जवाब दिया है कि ये मेरा चौथा सवाल है कि व्हाट डू जी। यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस टेरिबल डिक्लाइन इन पब्लिक डिस्कोर्स टुडे? Well, I see there is a terrible decline, not just in public discourse, but in all kinds of discourse, even in private discourse. There is a terrible decline of standards generally, of standards of humanity, of humanness, and it's a global phenomenon. But in countries like India, as I said, the it's very easy. It's easier in such a large country to convince the population that there is a particular group which is the reason for the country not doing well, or for you not doing well. In a multicultural society like India, where the the statistics of population are such that even the largest minority is only 19% or 20%. Then or only because of this particular language that can sway votes in one way or the other. अब प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो ये है कि हमारी जो अपोजिशन है वो इस कदर या तो वीक है, या वो इस कदर तहजीब वाली है, कल्चर्ड है, कि वो उस स्तर पे नहीं उतर सकती। उस स्तर पे नहीं उतर सकती है वो। आई थिंक अ कल्चर्ड पर्सन, a man of words is exactly who we don't need to defeat people like the politicians who are using this kind of language. And our problem is that we don't have our own good crook, so because हम लोग उसमें यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ कुछ भी हो जाए, people convincing people in human psyche. And why I say this is कि अगर आप नॉर्मल पब्लिक को देख लें, तो चाहे उसको ये ना पता हो कि नेहरू ने ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी में क्या कहा था, लेकिन उनको फिल्मी गीत जरूर याद होंगे। बहुत सारे वो गीत जो हैं वो उर्दू गजल या उर्दू नज्म से लिए गए हैं, और उसके अलावा ऐसी चीजें जिनको वो शायरी समझते हैं वो जरूर याद होंगे। तो शायरी की ये खूबी है, या जबान की ये खूबी है, एंड इट कट्स बोथ वेज, लाइक यू आर सीइंग, कि वो जिस तरह का काम कर सकती है आपके जहन पे, उस तरह का काम शायद और तरह का जो मीडियम है वो नहीं कर सकता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर हम लोग इस किस्म की चीजें करते रहेंगे, जैसे हम लोग की ये गुफ्तगू हो रही है, या जैसे आप देखती हैं कि आजकल अदबी मेले हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि साहब, चाहे उसमें खराब ही शायरी हो रही हो, लेकिन अगर चॉइस इसमें है कि ना हो शायरी और
खराब शायरी हो तो आई विल वोट फॉर खराब शायरी। हालांकि हम लोगों के जाहिर है कि बिल्कुल दिल को तीर नीमकश की तरह लगती है, लेकिन फिर भी उससे ये होता है कि अंदर का की जो एक इंसानियत है हर शख्स की, वो या तो उभर के बाहर आती है या कम से कम अगर होती है तो कायम रहती है। तो you know, there's this new trend, not very recent, but in the last about 10-15 years, that judges have started using Urdu poetry and couplets in their judgments, in English judgments. I mean, judgments are written in India and English in the higher courts. So even the Supreme Court is using fairs and all these established classical poets. तो मेरा उस पर टेक ये है that this actually brings a certain degree of compassion and kindness and humanity in an otherwise dry subject. तो वही बात मैं अपने political discourse के लिए भी कहूँगा कि अगर आप शायरी का इस्तेमाल करें, तो मैंने उर्दू शायरी में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी जो अनडेमोक्रेटिक हो, जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, जिसमें मोहब्बत ना हो, जो लोगों को लड़ाने का काम करती हो मिलाने की जगह। तो बल्कि जिस तरह की शायरी की गई है फ्यूचर को देखते हुए कि फ्यूचर हमारा इतना खराब होगा, जो आज फ्यूचर है इसको प्रेडिक्ट किया गया है, लेकिन उसको भी जिन अल्फाज में प्रेडिक्ट किया गया है वो भी इस कदर खूबसूरत है कि अगर आप उन अल्फाज का भी इस्तेमाल करें आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक जानिसार अख्तर के 4-5 शेर मैं पढ़े देता हूँ इसके जवाब में कि जो फ्यूचर का प्रेडिक्शन जिन अल्फाज में किया गया है, और आप जरा जबान देखिए कि जमी होगी किसी कातिल का दामा, हम ना कहते थे। जमी होगी किसी कातिल का दामा, हम ना कहते थे। अकारत जाएगी गा खूने शहीदा, हम ना कहते थे। बेकार जाएगा, अकारत जाएगा खूने शहीदा, हम ना कहते थे। और इलाजे चा के पैराहन हुआ तो इस तरह होगा, वैसा ही हो रहा है। इलाजे चा के पैराहन हुआ तो इस तरह होगा, सिया जाएगा कांटों से गरेबा, हम ना कहते थे। और तराने, ये शेर देखिए आप खास तौर पे, तराने कुछ दिए लफ्जों में खुद को कैद कर लेंगे। तरा लिखता है, बिल्कुल आज ही के लिए लिखा गया हो कि तराने कुछ दिए लफ्जों में खुद को कैद कर लेंगे, अजब अंदाज से फैलेगा जिंदा, हम ना कहते थे। और कोई इतना ना होगा लाश भी जाके दफना दे, इन्हीं सड़कों पे मर जाएगा इंसान, हम ना कहते थे। और नई तहजीब, आप जिस शहर से इस वक्त जलवा अफरोज हैं, नई तहजीब कैसे लखनऊ को रास आएगी, आप इसको लखनऊ की जगह हिंदुस्तान कर दीजिए। नई तहजीब कैसे लखनऊ को रास आएगी, उजड़ जाएगा ये शहर गजाला, हम ना कहते थे। अफसोस जी। तो जहां तक कल्चर का ताल्लुक है, सकाफत का ताल्लुक है, जबान का ताल्लुक है, तो काफी हद तक उजड़ गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इस किस्म की चीजें और होती रही और हम करते रहे जबान पे गुफ्तगू, तो we haven't reached a stage of no return. We haven't yet. Sir, Akhtar Saab doesn't sound too hopeful. He's not as yes. But even see, but the language that he has used, even if being very pessimistic, is the language that ought to be used, and that has always been used in our public and private discourse. I mean, it's a shame that we now not only not use this language, but also associate it with terrorism and militancy. And I mean, some years ago, I remember some Maharashtra police or some police had filed an affidavit in a court saying that so-and-so is a terrorist because we have found a Ghalib couplet in his diary. And that couplet of Ghalib was, so one of his usual ones. कि उसमें बस खून लफ्ज का इस्तेमाल था, that's all. जी, तो ये तो हाल है। आप क्या नहीं, कमाल इस जबान का ये भी है कि जानिसार अख्तर साहब की ये वेरी पेसिमिस्टिक लाइंस भी एक ललकार की तरह हैं। जी हाँ, जी हाँ, यू नो, जी हाँ, स्पेशली नौजवान को जगाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन जंग जबरदस्त है। यू नो व्हाट वी आर फेस्ड अगेंस्ट, there's a film which has been recently released called हमारे 2 तुम्हारे 12 or something like that. बताइए आप।
So that is what you are against. So I hope. हाँ, तो बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि ये है तो इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जी जी जी, इट्स अ वेरी वेरी अनलेवल या प्लेइंग फील्ड। तो है मुश्किल है, लेकिन अगर मुझे लगता है, लेकिन अगर इस तरह की प्लेइंग फील्ड में कोई चीज काम कर सकती है तो वो बिल्कुल। हमारी तहजीब और ज़बान। क्या बात, क्या बात। On that lovely note, I want to thank you very much for Thank you. your time. Thank you so much, Saif, for talking to the citizen. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आदाब। आदाब।